Do you guys know what is consumer surplus and producer surplus, and why is it called consumer and producer surplus? What is the logic behind it? Consumer surplus is what the consumer is willing to pay and the price that they actually pay, even if the price is like increased or decreased. Okay. Is this what you're going to write? I will write when what a consumer is willing to pay for a good or a service, and Over and above the equilibrium price. yeah, it's like upward. Consumer surplus is It's above equilibrium price. what customers are willing to pay Mhm. over and And it's like above the demand curve. the equilibrium price. Whereas Producer surplus producer surplus willing to is what producers to are get or willing sell to sell below equilibrium price. the equilibrium price. Hmm. Always make easy for examiner, like I say. अभी अगर मुझे equilibrium बनाना है, I know this is demand curve, I know this is supply curve, और Hmm. ये equilibrium है. ओके. Hmm. जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, येलो पोर्शन, ये क्या है? ये क्या है? Surplus. कंज्यूमर सरप्लस. और ये नीचे वाला Producers. Surplus. ना. तो पॉइंट इज ऐसा क्यों है? क्यों बोलते हैं हम इसको कंज्यूमर सरप्लस Demand curve. और इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों बोलते हैं? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. शिवानी मूवी देखने गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एंड वो डेट पे गई है, और 500 रुपये की एक मूवी टिकट है पीवीआर थिएटर में. ओके. Hmm. राइट. Yeah. और मूवी थिएटर में 200 सीट्स हैं. अभी शिवानी गई थिएटर पे वहां पे, और उसने मूवी टिकट पूछी, उन्होंने कहा हाउसफुल है. तो शिवानी इज वेरी एम्बैरेस्ड दैट आई एम आउट एंड आई टेकन अप माय बॉयफ्रेंड, और मैं डेट पे आई हूँ, और मूवी की तो टिकट्स फुल है. सो शिवानी सेज के भैया प्लीज चार्ज मी 1000 रुपी, प्लीज मेरे को टिकट्स दे दीजिए. ही सेज आई डोंट हैव अ टिकट. So she Hmm. said, no, please take 2000 rupees per ticket. I really, really want to watch this movie with my boyfriend. So she says, नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, प्लीज 5000 ले लो. He said कि I can't put extra sofas. No means no, ticket नहीं है. Hmm. What we are experiencing is Shivani is willing to pay over and above equilibrium price because she has surplus money. She has surplus that kind of resource. Extra income. But More. she's willing to pay. सिमिलरली अगर पीवीआर टिकट में हॉल में कोई भी मूवी नहीं देखने आया और हाउस पूरा फुल नहीं है, समटाइम्स यू माइट फील जैसे बुक माई शो ने डिस्काउंट लगाया हुआ है, और दूसरी एप्स पे भी डिस्काउंट्स हैं, मे बी समटाइम्स सम शोज आर एट डिस्काउंटेड प्राइस. सो इट्स द एबिलिटी ऑफ अ supplier to sell at below the equilibrium price. Like And we what they saw, actually do. like in yesterday's case, we saw H&M की टी शर्ट या मैंगोज एक्स्ट्रा सरप्लस है, तो Price कम कर देंगे. प्राइस कम करने को भी तैयार है. करेक्ट. Hmm. अब जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को हम इक्वल प्लस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? Market surplus. क्या मिलता है हमको? कम्युनिटी सरप्लस मिलता है. पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी, क्योंकि दोनों लोग इंक्लूड हो गए, राइट? Hmm. प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर. Consumer.
Now the point is, if at all you have to calculate कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे आता है, Hmm. इट्स इजी। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिकॉज आपको ये वैल्यू 200 पता है और 500 पता है, और लेट्स से ये टॉप टिप, ये लेट्स से ये 7, लेट्स से ये 5000 ही है, यही है। Hmm. So this distance, I'm marking it with a red pen now. This distance from 5 to 500, ये 4500 का है। Hmm. ज्यादा ठीक हो गया, पर ये 4500 का है। और Hmm. ये base कितना है? 200। Can I calculate the area of a triangle? Half base into height. Will I get consumer surplus? Yep. Simple. 500 is the base, right? Sorry, What is the base value? half base into height. No, Base no, I got that. What's the base is base? 200 ना? That's 5K. Base is 200 ना? Triangle का base तो Oh, 200। yeah, 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 yeah. ट्रायंगल का बेस ये 0 से लेके 200 तक का ही तो है। Okay, okay, got it. ट्रायंगल की हाइट 4500 की है, Hmm. तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। हाँ, सेम इस ट्रायंगल का बेस भी 200 है नीचे, और इस ट्रायंगल की हाइट तो सिर्फ 500 है, हाँ. और ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। Hmm. तो नेवर गेट कंफ्यूज कि कैसे ही निकालना है, बहुत इजी है। Hmm. Okay. इज दिस क्लियर? Yes. Yeah. आगे बढ़ते हैं। सो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, एंड लेट्स जस्ट डू फर्स्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। Okay. ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन द मार्केट बिकॉज मार्केट, फ्री And मार्केट रिक्वायर्स like करेक्शन। it has negative like Yes. externalities. ओके, नहीं नहीं, आपको ये नहीं, नॉट बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इट Okay. कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। Okay. गवर्नमेंट, थोड़ा सिंपल बनाते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन means any interference, right, Hmm. of by the government authorities, by the government authorities to disrupt the functioning of free market operations। फ्री मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो उसको हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन बोल सकते हैं ना। हाँ. फ्री मार्केट का मतलब क्या है? वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे Yeah. कोई Yes. गवर्नमेंट, Yes. इमेजिन कोई गवर्नमेंट नहीं है। Hmm. लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो, इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, That क्या होगा? will be chaos, conflict, no कैसे rule. कैसे कैसे नो रूल्स? ओके, ओके, फिर क्या होगा? Uh, no stability, नो स्टेबिलिटी, no growth. नो ग्रोथ, Uh, करप्शन। black market, कैन आई से इट विल लीड टू एफिशिएंसी? inefficiency. No, एफिशिएंसी, yeah, it'll not be efficient. They won't allocate resources properly. नहीं नहीं, मेरी रिसोर्स में एलोकेट करूंगा, मैं बिजनेस ओनर हूँ। अब मैं लेट्स से मैं टी शर्ट्स बना के बेच रहा हूँ, और मेरी टी शर्ट 500 रुपये की है। सेम टी शर्ट कोई 400 की बना रहा है, फिर कोई 300 की बना रहा है, कोई 200 की बना रहा है। Oh, लोग like. लोग अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे ना, क्योंकि सरवाइव करना Mm-hmm. है। एफिशिएंसी, तो कैन वी से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई बायसनेस नहीं है, नो बायसनेस। अभी तो गवर्नमेंट बायस कर देती है ना, अमीरों को हेल्प कर देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प कर देती है, हम टैक्स पेयर से हमारा पैसा लेके गरीब फार्मर्स को दे देती है, या
कोई जितने भी अल्कोहलिक और स्मोकर्स हैं जिनको इलाज, Tax. जिनको गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स की जरूरत है, गांव गांव में लोग शराब पी के बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज तो सरकारी अस्पताल में किया जाता है और हमारे पैसों से किया जाता है, तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे, हमारे पैसों से सबका इलाज हो रहा है। Mm-hmm. ठीक है? तो अभी कोई बायस नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो सबको कैन वी से सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपने बारे में सोचेगा। Mm-hmm. बट वॉर हो सकते हैं, Hmm. क्राइम्स हो सकते हैं, No crime protection. कुछ है ही नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप अपने हिसाब से चल रहे हो आप। ठीक है, वॉर फाइट्स वगैरह हो सकती हैं। ये फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है रोड्स भी ठीक से नहीं बनी हुई है, रेड लाइट्स पे लोग रुकते ही नहीं है क्योंकि रेड लाइट ही नहीं है, पानी आएगा कभी नहीं आएगा पता नहीं है, लाइट आएगी नहीं आएगी। और अगर आपको लाइट पानी चाहिए तो कोई बिजनेस कहता है मैं दे दूंगा आपको लाइट, चिंता की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड अ गवर्नमेंट, यू पे मी मनी, I'll give electricity to you. I have money. I'll set up an electricity plant for you. But getting money only you need government. Sorry? Getting money you need government. No, no, no. Somebody is already rich. अभी let's say आज अभी बांग्लादेश में गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, let's say Hmm. कोई रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहता है मैं आई विल गिव इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट है ही नहीं, लोग लेट्स से थोड़े दिन बाद अगर लोगों के घर आना, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो, इंटरनेट आना बंद हो जाए तो, अगर कोविड में गवर्नमेंट नहीं होती, भाई लोगों को पानी बिजली सब तो चाहिए। Mm-hmm. So somebody will come up, raise the hand. I will give me your money, and I will give you the services. In Yeah. that in that competition, another second firm will come. No, no, he's charging you high. I will give you better services. They'll तो charge low, they try to competition. तो कंपटीशन आ गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया। Hmm. तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो फ्री मार्केट है, कुछ नहीं है, Hmm. नो गवर्नमेंट एट ऑल। Yeah. बट नाउ लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, जो हम ऊपर लिख चुके हैं, which means government takes In charge. actions by correcting failures in the market. Hmm. Okay, but before we move to market failures, let's just understand government intervention कैसे करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है हमारे So, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट इंटरवीन्स थ्रू टैक्स, सब्सिडी, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, यही चार चीजें हैं आपके सिलेबस में, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, राइट शिवानी? yeah, yeah. अच्छा, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई विल नॉट टेल यू दिस, टेक अ मिनट, पिक अप योर पेन एंड जस्ट गिव मी डेफिनेशन, हाउ विल यू डिफाइन टैक्स, राइट एज मच एज यू कैन, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं। डिफाइन टैक्स, टैक्स होता क्या है, जो आपके मन में है लिखना, लिखना शुरू कर दो। वन Hmm. पॉइंट आई नीड 4.45 बुलेट पॉइंट्स, वट एवर यू थिंक इट इज। Okay. हाँ जी, इन्होंने लिखा है मनी नीड्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर अमाउंट Sales. और अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और इनकम। ठीक है, हाँ जी, आपने क्या लिखा है? I You can- wrote, I wrote, it's charged on income. It can be passed on, like it can be passed on to हम्म, consumers and producers. I wrote the types of tax. हम्म, It is imposed by government because they need to like collect revenue and then they need to like provide goods and services for us. हम्म, And then I wrote that some people may not pay tax because it's sometimes too high, or they may feel like they don't feel like working because half of their income goes in as Okay, tax. right. So don't digress from the topic. Uh, a tax is a charge punishable under law
इफ इट रिमेन्स अनपेड। बहुत सिंपल है, एक चार्ज है जो सरकार कहती है हमें पे करना है अंडर द लॉ, Hmm. एंड यू कैन बी पनिश्ड इफ यू डोंट पे इट, Yep. राइट? सो टैक्स कैन बी Progress. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Yep. Direct taxes on income, indirect taxes on goods and services, which eventually indirectly government collects from consumers only, because producer बहुत चालाक है, वो क्या करता है, वो टैक्स का बर्डन High prices pass were on one passes, person. passes on to the consumer. So can we say taxes Can be passed on. make taxes make tax makes होगा शायद, taxes makes um Goods and services are expensive. goods and services expensive. Yep. So basically, supply curve shift leftwards. Hmm. Correct? Yep. एक बना लेते हैं, ठीक है? Hmm. ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है। अगर मुझे ये पता है कि किसी भी चीज का मुझे प्राइस बढ़ाना है, तो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन टैक्स लगता भी सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे है। टैक्स Hmm. लगने से डिमांड तो बढ़ती है किसी चीज की। सो लॉजिकली टैक्स का मतलब है, इफ आई हैव टू पुल दिस leftward, I have to pull supply curve Effort shift. correct, and therefore पहले अगर ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस था, now the quantity will be this, quantity is reduced and the price is also charged high, But the producer is getting this. अभी आ रहा है। So Q की जगह Q1 Hmm. और And P की जगह here E1. P की जगह P1। Hmm. I Yeah. have a question for you. फ्री हैंड से देखते हैं कि कितना बर्डन किसके ऊपर है। अब जो भी मुझसे बन गया है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कैन आई सी, आई कैन क्लियरली सी जो सप्लाई कर्व है नई क्वांटिटी पे यहाँ पे हिट करता है। Hmm. तो मैंने एक यहाँ से लाइन खींच दी ऐसे, ओके, P3. राइट। आई कैन क्लियरली सी कि मुझे मुझे ये भी पता है कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये है। Hmm. अगर ये डिमांड कर्व आगे तक जाता तो ये पूरा का पूरा, Consumer surplus. ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है। Hmm. और मुझे ये भी पता है कि ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है, Hmm. ओके। Hmm. अब इस कंज्यूमर सरप्लस में से ये वाला बॉक्स तो टैक्स में चला गया, Hmm. और जो नीचे वाला बॉक्स है वो भी टैक्स में चला गया. वो टैक्स में चला गया। बट कैन आई सी, कैन फ्री हैंड से अब जो भी बना है मेरे से, उससे मुझे ये तो नजर आ गया है कि जो Pollution. प्रोड्यूसर ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, पिंक बॉक्स इज मच ग्रेटर देन दी Uh, ब्लू blue box. बॉक्स। No, this is the Yeah. what the producer tax. ये 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 प्रोड्यूसर का टैक्स बर्डन है, Uh, और ये कंज्यूमर का टैक्स बर्डन है। so there's burden more on the producers. यस। अब मुझे अगर अगर मैं इसको ध्यान से बनाता, अगर मैं इसको ध्यान से बनाता तो शायद इक्वल बर्डन बनता, Hmm. करेक्ट? Yeah. विच मीन्स अगर मैं ध्यान से ऐसे बनाता तो ये डिस्टेंस बराबर का होता, ये वाला और ये वाला तो बराबर का होता, ए और बी, Mhm. which means consumers and producers are making Sharing equal burden. equal burden। अब ये बराबर कब होगा और कब नहीं होगा? क्लियरली आई नो दैट ये डिमांड की वजह से बराबर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं डिमांड कर्व ऐसा बना देता Inelastic. तो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बनता, Hmm.
इनइलास्टिक का मतलब ही यही है कि कोई ऐसा गुड या तो वो एडिक्टिव है या वो एसेंशियल फॉर लिविंग है, और प्रोड्यूसर को पता है वो इनइलास्टिक गुड है, तो तो वो वो टैक्स लगा देंगे. ज्यादा टैक्स बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास कर देता है। So the more inelastic the demand, the more burden can be passed. ऑन कंज्यूमर एग्जैक्टली। सो लेट्स से एक बियर बॉटल 100 रुपए की है, एक Hmm. हमें इसके ऊपर 100% टैक्स चाहिए, Ah. हमें इसके ऊपर 100% टैक्स चाहिए। तो अल्कोहल प्रोड्यूसर सिंपली 200 रुपए की बियर बॉटल कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो एडिक्टिव एडिक्शन है तो वो टैक्स लगा देगा. 200 रुपए भी पे करेंगे। हम्म. लेकिन अगर सेम 100 रुपए की टी शर्ट होती और गवर्नमेंट कहती कि जितनी भी इम्पोर्टेड टी शर्ट्स आएंगी उन पे हम 100% टैक्स लगाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो इम्पोर्टेड लोगों को, इम्पोर्टेड प्रोड्यूसर्स को जो इंडिया में आके सेल कर रहे हैं उनको 200 की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी जेब से तो टैक्स पे नहीं करेंगे। हम्म. हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसे प्रोड्यूसर की टी शर्ट ले लेंगे, क्योंकि हम बहुत ऑल्टरनेटिव है टी शर्ट्स के। करेक्ट। Yeah. अब ये हो सकता है ये इम्पोर्टेड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है वो 100 प्राइस की जगह सिर्फ 150 कर देता टी शर्ट का प्राइस। Hmm. तो क्या होता, 40 रुपीज वो कंज्यूमर से ले रहा था और 50 अपनी जेब से पे करता Equal. गवर्नमेंट। नहीं 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 नहीं, 100 रुपी का टी शर्ट का ओरिजिनल प्राइस है, अंडरस्टैंड। Hmm. और गवर्नमेंट ने कहा हमको तो 100 रुपीज टैक्स चाहिए, हमको तो 100 रुपीज टैक्स चाहिए इसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ द न्यू प्राइस इज 150। Equal हो गया burden. 50 on the consumer. ना, आप लोग गलत सोच रहे हैं। द न्यू प्राइस इज 150। गवर्नमेंट को तो अभी भी 100 ही चाहिए टैक्स। Hmm. गवर्नमेंट कह रही है आप कितने की भी बेचो टी शर्ट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई नीड 100 रुपी ऑन एवरी टी शर्ट सोल्ड। Hmm. ये 150 में से अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज लेके जाएगी 50. तो 50 तो कंज्यूमर से ले लिया था आपने, क्योंकि 100 की जगह आपने 50 रुपी की 150 की टी शर्ट कर दी। तो 50 आपको प्रॉफिट मिल गया. 50 आपको अपनी जेब से भी देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, सिर्फ 50 रुपीज ही तो रहा। हम्म. राइट, ऐसा भी हो सकता है दैट द burden of the tax is shared not Among both. equally, but maybe a producer can also face greater burden of the tax. Tax. अब हमको इससे तीन चीजें समझ में आई हैं, बहुत क्लियरली तीन चीजें समझ में आई। पहली चीज, टैक्स का बर्डन इक्वल तो मैंने बना दिया। Hmm. अब हम करते हैं इलास्टिक डिमांड, Greater than that. बट नॉर्मल सप्लाई विच इज यूनिट इलास्टिक, Hmm. और इसके ऊपर लगा देते हैं टैक्स, तो सप्लाई कम हो जाता है. एस टैक्स। ठीक है। Hmm. तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, Hmm. अब Actually. इक्विलिब्रियम ये हो गया। Hmm. पहले प्राइस ये था इक्विलिब्रियम, Hmm. और अब प्राइस ये हो गया। एज यूजुअल अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि बर्डन किसके ऊपर ज्यादा है, तो मुझे क्लियरली पता है कि ये तो कंज्यूमर का बर्डन है, Hmm. और वो प्रोड्यूसर का फिर. प्रोड्यूसर का बर्डन तो बहुत ज्यादा है। क्यों Hmm. ज्यादा है? क्योंकि इनएलास्टिक गुड है, इसके Hmm. बहुत सब्स्टिट्यूट है, कस्टमर कहता है मुझे लेना ही नहीं है, मैं कोई और प्रोडक्ट खरीद लूंगा जिस पर टैक्स कम है। Hmm. लेकिन अगर ये सेम चीज, अगर ये प्रोडक्ट इनइलास्टिक वैसे बोलती है. और इसकी नॉर्मल सप्लाई होती है यूनिट इलास्टिक, सेम चीज, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, Hmm. एस टैक्स। It's ये a good one. इनइलास्टिक, इनइलास्टिक की डिमांड एकदम से गिर रही है। Hmm. कल और आई कैन क्लियरली सी कि प्रोड्यूसर के ऊपर तो बहुत, कंज्यूमर के ऊपर तो बहुत सारा बर्डन है, पर प्रोड्यूसर में कम है. क्योंकि इनइलास्टिक गुड है, कस्टमर को लेना ही लेना है, रेडी टू पे टैक्स। Hmm. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है,
प्रोड्यूसर का कम। प्रोड्यूसर का बर्डन का, हम्म, तो तीन सिनेरियो हो गए, इक्वल शेयरिंग एंड yes, producer more, consumer more, both equal burden. बर्डन, करेक्ट? Yeah. थोड़ा समझ में आ गया? हाँ, सो द चेंज इन, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाई व्हेन एनालाइज, चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं, एनालाइज, ऐसे क्वेश्चन आ गया, एनालाइज व्हाई बर्डन ऑफ टैक्स may not be equal among producers and consumers. consumers and producers. Hmm. Don't get confused. सीधा सीधा आंसर है because of elasticity. Yeah, the more inelastic, the more burden, and then top. And why did I write analyze? Why did I not? No, why did I not write explain? ये कमांड Because एनालाइज का मतलब ही यही है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं, negative and कैसा है, positive. इलास्टिक कैसा है और इनइलास्टिक कैसा है। अगर मैं सिर्फ एक्सप्लेन लिखता, एक्सप्लेन व्हाई द बर्डन ऑफ टैक्स में भी, तो आप कोई भी एक समझा के आते तो चलता था। एनालाइज का मतलब है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखना। Hmm. समझ Is आया? it Yeah, right? Oh, I got it. great. Let's say we are now moving to subsidy. Subsidy क्या होता है? Support by the government. AIDS. Correct. Financial help literally to Get a producers. state. ये भी प्रोड्यूसर को दी जाती है। सब्सिडी से सप्लाई राइटवर्ड मूव हो जाएगी। Hmm. एस की जगह हम एस यू बी पे चलेगा। लेट्स से S1. थोड़ा मैंने अभी ऐसे आपके समझने के लिए लिख लिया, एस सब्सिडी पे चलेगा, ये छोटा वाला एस है। पार्डन माय हैंड राइटिंग बिकॉज ऑफ दिस। It's okay. सब्सिडी की वजह से, बिकॉज चीजें अब सस्ती हो गई हैं, पहले ये प्राइस था, अब गवर्नमेंट ने ये कुछ देने के बाद प्राइस हो गया, तो वो पर्टिकुलर गुड क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, Hmm. क्यू की जगह क्यू वन पे आ जाएंगे Hmm. और प्राइस भी कम हो जाएगा। Hmm. करेक्ट? Yeah. सिर्फ एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, सब्सिडी में वेलफेयर लॉस होता है, बिल्कुल होता है। Oh, that क्यों great answer. वेलफेयर लॉस होगा? बिकॉज हम टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं जो इनएफिशिएंट है, सस्ता नहीं बना सकते हैं। अगर फॉरेन कंट्री के लोग बना सकते हैं तो हमारा प्रोड्यूसर क्यों नहीं बना सकता? लेट्स से चाइना से कोई चीज इम्पोर्ट होके इंडिया आती है, वो लोग ईयरफोन्स हेडफोन्स 1,000 रुपए में बेच देते हैं, 500 रुपए में बेच देते हैं, लेकिन इंडिया में वो सेम चीज प्रोड्यूस होती है 2,000 रुपए की। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया में आप अपने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि वी आर सपोर्टिंग यू, आप इससे भी सस्ता चीज बनाओ, तो लेट्स से वो बना भी लेते हैं, बट सब्सिडी आ कहाँ से रही है? टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रही है। Hmm. तो इनएफिशिएंसी होगी बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हेल्प स्टेक होल्डर्स, यू आर ट्राइंग टू हेल्प प्रोड्यूसर्स हु आर इनएफिशिएंट, जो सस्ता नहीं बना सकते। बाकी की कंट्रीज बना सकती हैं तो आप भी बना सकते हो। करेक्ट? अब हम वेलफेयर लॉस दिखाएं कैसे? हम वेलफेयर लॉस दिखाएंगे हम नए वाले इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इस क्वांटिटी के ऊपर ही सब्सिडी मिली है, Hmm. इस क्वांटिटी को एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक, पुरानी सप्लाई तक। तो इतनी सप्लाई है और इसके सामने ये प्राइस है। Hmm. तो वो triangle वो welfare loss है. ये जो ये जो ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम, ओके, इंक्लूडिंग, ओके, और Hmm. ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये दोनों, ये दोनों उल्टे हो गए। अब उल्टे मतलब अभी प्रोड्यूसर सरप्लस ऊपर चला गया है और कंज्यूमर नीचे है. और कंज्यूमर सरप्लस नीचे चला गया। अभी इसको समझाता हूँ कैसे। और ये जो ट्रायंगल है,
That weight loss. ट्रायंगल ए, Welfare loss. ये वेलफेयर। Hmm. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस, इतनी ही तो हेल्प की थी सप्लाई, इतनी ही तो हेल्प की थी, आपने सप्लाई को नीचे ले आए थे आप, मतलब आप सब्सिडी की वजह से प्राइस नीचे ले आए थे, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वेलफेयर लॉस है, व्हिच मींस दिस। नाउ द क्वेश्चन इज प्रोड्यूसर सरप्लस ऊपर कैसे पहुंच गया और कंज्यूमर सरप्लस नीचे कैसे आया। मैंने आपको एक लाइन दी थी, कंज्यूमर सरप्लस वो है जो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है। Above. अभी इक्विलिब्रियम प्राइस तो हो गया ये सब्सिडी के बाद, नीचे आ गया। करेक्ट। तो कहना इससे कंज्यूमर्स को ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, Hmm. तो ये सारा का सारा कंज्यूमर का ही तो सरप्लस है। Because equilibrium is going down. हाँ, इक्विलिब्रियम नीचे आ गया। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर बहुत चालाक है, देखो उसने दो जगह से पैसा कमाया, एक तो वो कंज्यूमर से पैसा ले रहा है, प्लस उसको गवर्नमेंट से भी पैसा मिल रहा है, Hmm. तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो कस्टमर से पे कर ले रहा है, और यहां तक का प्राइस ऊपर वाला P1 P2 ये Price P increase होगा तो उसको भी करना। ये गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से ये वाला सारा पोर्शन प्रोड्यूसर के पास आ गया, Hmm. करेक्ट। Yes. अब सिर्फ जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही तो वेलफेयर लॉस था। Hmm. इज दिस मेकिंग सेंस टू यू। मोस्ट स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, बहुत आसान है, नीचे वाला कंज्यूमर सब्सिडी अभी के लिए याद कर लो, रट लो, नीचे वाला कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है, ऊपर वाला प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाता है, और ये ट्रायंगल वेलफेयर लॉस, Welfare loss. क्योंकि इनएफिशिएंसी आपने क्रिएट कर दी। Hmm. तो हमने आज सब्सिडी और टैक्सेस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, फ्री मार्केट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सब आज हमने खत्म कर दिया है। हाँ।